Welcome again, third class of the introduction of the macroeconomics chapter. Dear student, according to the second class of the introduction of microeconomics and economics, four major sectors: household, firms, government and foreign or external sectors. यहाँ हम लोग एक एक सेपरेटली बात करेंगे कि व्हाट इज हाउस होल्ड. हाउस होल्ड से ही क्लियर हो रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ड विच आर अंडर a single house means it is a single individual or group of individuals who independently take decision regarding to their economics activity like consumption, production, employment, etc. It means a group of people or a single family or single person have right to take all types of decision on the economic activities. Under household sector, for the consumption of peoples buy the goods and services. हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, हम उसको ख़रीदने के लिए हमारे परिवार का जो मुखिया है वो उसको ख़रीदने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है. एंड also supply factor of the production like land, labor, capital and entrepreneurs. और हमारे यहाँ जो चीज़ है, जो हमारे पास उपलब्ध है, जो थिंग्स है, उसको हम चाहें तो सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में, या तो किसी एंटरप्रेन्योर या किसी फर्म, किसी फैक्ट्री को भी हम प्रोवाइड्स करा सकते हैं. इन सभी मामलों पे डिसीजन लेने का हमारे पास क्या है, राइट्स हैं. Household provide the market for the output of the firms. The household provide to market for the output of firms. It means it secure to the outputs of the any factories, any firms. This sector includes everyone, consumers, people and every members of the society. एक एक व्यक्ति समाज का जो है वह इसमें क्या है, इंक्लूड है, अंतर्निहित है, समाहित है. दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर रोल इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हमारे घर में पैदा हो रहा है, हमारे घरेलू उत्पादन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये उसके कंजप्शन और एक्सपेंडिचर दोनों के लिए जिम्मेदार होता है. अगर कंजप्शन अच्छा है तो निश्चित है कि वो हमारे जीडीपी को इफेक्टिव करेगा. इसी तरीके हमारा दूसरा जो सेक्टर है वह फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं. फर्म आर इकोनॉमिक यूनिट दैट कैरी आउट ऑफ प्रोडक्शंस. जो प्रोडक्शन मीन्स द गुड्स विच आर रेडी for the consumer
टू कंजप्शंस, जो कंज्यूमर के कंजप्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं सामान्य, उन्हीं को तैयार करने का काम कौन करता है? फर्म्स करता है। द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन एंड अंडरटेक प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मार्केटिंग। ऑलवेज a firm want to more and more profit through their production, through their producers of their goods and services. These sector responsible for the investment expenditure in GDP. In the way third sector is government. Government, an individual, institution or organization which control or regulate to country called government. A state government or central government provides a different type of law and order maintain to growth and stability and provides administrative services in any country. And also the main motive of the government is to undertake development projects such as dam, road, heavy industries, and usually have long gestation period by the imposing taxes on the firms, on the entrepreneurs, on the markets. The government invests in education, health sector, and provides the services at nominal prices. गवर्नमेंट्स की मोटिव्स क्या है? टू सर्व एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट, टू वेलफेयर नॉट अ पर्सनल प्रॉफिट। इसमें लोक कल्याण की बात होती है, खुद किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाभ कमाना नहीं है, जो कि फर्म्स का उद्देश्य होता है खुद अपने लिए ढेर सारा लाभ कमाना। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, environment protection and others basic needs of the peoples managed by the government, and these sector create a responsibility for the government to purchase role in GDP. ये गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो या एजुकेशंस में हो, कहीं भी है, उसमें जो इक्विपमेंट लगेगा, जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट एक कंज्यूमर के रूप में परचेजिंग रोल अदा करती है जीडीपी में। नेक्स्ट और लास्ट, एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स फॉरेन सेक्टर। द सेक्टर आर दिस सेक्टर engaged in the export and import means external trade and commerce of the goods and services. If domestically
produced goods and services are sold to the rest of the world, then it is called export. जब हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का हम दूसरे देश के लिए को बेचते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब हम दूसरे देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत निर्माणित वस्तुओं और सेवाओं को अपने देश मंगाते हैं, दीज वर्ड आर दीज टर्म यूज्ड ऑफ द import. Export and import of the goods and services can be inflow of goods and inviting to capital from foreign countries. अगर हम अपने देश के जो गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ हमारे बाउंड्री में, हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री के अधीन, हमारे देश की जीडीपी के अधीन जो तैयार किया जा रहा है उसको हम विदेश भेजते हैं, विदेश के मार्केट में हम बेचते हैं, तो निश्चित है हमारे पास अच्छी एक आय होगी, इकोनॉमिक होगी। और ये जो एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ये एट्रीब्यूटेड टू द फॉरेन सेक्टर इज़ नेट एक्सपोर्ट। जितना एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसी के बराबर होगा। और ये जो हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं ये हमारा फॉरेन ट्रेड इन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो पॉलिसीज़ है इसी पे बेस्ड होता है। ये कुछ चीज़ें थी, कुछ टर्मोलॉजी थी, कुछ मेन फीचर्स थे जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज़ होंगे और ये वेरिएबल्स के रूप में हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस भी होते हैं। इनको हम एक एक करके आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बात करेंगे। ओके, थैंक यू।